Jai Gurudev student. Today we start a next topic, that is the word problems, which we start on the Microsoft Teams. But now I'm taking the same video. Okay, so we start the word problems. I'm showing this on the PowerPoint slides. Okay, the first question is 10 students of a class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls took part in a quiz. Okay, see this question. In this question, there are two things which are compared with each other, that is number of boys and number of girls. Let the number of boys be x and number of girls be y. Okay, so see the first condition. What is the first condition here? There are 10 students in the class. In the class there are 10 students. 10 students means what is the first condition? Boys and girls together, answer is 10. Means according to first condition, x plus y is equals to 10. Okay. Now see the another color, black color question. If the number of girls is 4 more than the number of boys. If number of girls is 4 more than the number of boys. Number of girls means what? Y. Is equals to 4 more means 4 plus number of boys means x. So y is equals to x plus 4. This is our condition number 2. See the question number condition number 1 and condition number 2. Both the condition we have to solve. Which method is suitable for this question? If we see the condition, then we decide that for both this condition, substitution method is better. Because if we put the value of equation number 2 in equation number 1, then we solve this problem very easily. Okay, so we are using here substitution method. Put the value of equation number 2 in equation number 1. If we putting this value, then we get x and then x plus 4 as it is equals to 10. Then x plus x, 2x. 2x plus 4 is equals to 10. Then 2x is equals to 4 shifted that side is minus 4. So 10 minus 4 answer is 6. So x is equals to 3 is your answer. x is equals to 3 हमारा आंसर आ गया. अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुट दिस वैल्यू. ये जो वैल्यू है कोई भी एक इजी वाले इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे. सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. सपोज ये जो वैल्यू है मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके दिखाई. सो वी गेट y इज इक्वल्स टू इन प्लेस ऑफ x दैट इज 3. सो 3 plus 4 आंसर इज 7. y is equals to 7. So we get here 7 answer of y. Therefore, the number of boys are 3 and number of girls 7 in this quiz. Okay, this is the final answer of the first word problem. You have to write this answer in your notebook. Okay, now we solve the second question. Now see the second question. Question number 2. There are 5 pencil and 7 pens together cost rupees 50. Whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. There are two things which are compared with each other in this question, that is pencil and pen. Let the cost of a pencil be x and the cost of a pen be y. So according to first condition, see the according to first condition, there are 5 pencils and 7 pens. If the cost of 1 pencil is x, so what is the cost of 5 pencil? 5 pencil की cost कितनी बनेगी? 5x. 7 pen यानी कितना बनेगा? 7y. So according to first condition, 5x plus 7y is equals to 50. Whereas in the second condition, there are 7 pencils and 5 pens. 7 pencils means 7x. 5 pens means 5y. Together cost rupees 46. So equation number 2. Now we have to solve this question. Which method is suitable for this question? See the questions. अगर तुम इक्वेशन को अच्छे से देखते हो तुमको पता चलेगा. फॉर दिस क्वेश्चन इलिमिनेशन मेथड इज बेटर. इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 7 नीचे मल्टीप्लाई, 5 ऊपर मल्टीप्लाई. सो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 7. सो वी गेट दिस टू न्यू इक्वेशंस. इक्वेशन नंबर 1 को देखो 5 से मल्टीप्लाई करके दिखाया. 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 एंड 5 इंटू 50 250. लाइक द सेकंड इक्वेशन ऑल्सो, सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया.
7 7 जा 49, 7 5 जा 35 and 46 into 7 आंसर इज 322. ओके, नाउ सी दिस टू इक्वेशन. ये दोनों इक्वेशन से क्या करनी पड़ेगी, एडिशन करना पड़ेगा या फिर सब्सट्रैक्शन. दोनों इक्वेशन से क्या करनी पड़ेगी, सब्सट्रैक्शन. सब्सट्रैक्शन मीन्स सभी की साइन हम क्या कर देते, रिवर्स. मैंने सभी की साइन रिवर्स कर दी, सारे प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया. नाउ वी हैव टू डू सब्सट्रैक्शन हियर. सब्सट्रैक्शन में 25 minus 49 आंसर इज minus 24x. मिडल नंबर दैट इज 35 get cancel and 250 minus 322 answer is minus 72. Minus minus also get cancelled. So x is equals to 72 upon 24 that is x is equals to 3. x का आंसर 3 मिल गया, बट ये अभी सिर्फ x का आंसर आया. y का आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट करनी पड़ेगी. सो our first equation becomes 5 into 3 plus 7y is equals to 50. हमने वैल्यू पुटअप कर दी. सो 5 3 सा 15 plus 7y is equals to 50. So 7y is equals to 50 minus 15. So 7y is equals to 35. Therefore y is equals to 35 by 7. Therefore y is equals to 5. This is our answer. हो गया हमारा y का आंसर भी मिल गया. x का आंसर तो हमने पहले से निकाल लिया था. Therefore the cost of a pencil is rupees 3 and the cost of a pen is rupees 5. This is our final answer. You have to write this answer in your notebook. Okay. Now see the third question. Read this question carefully. Question is somewhat confusing. Okay. Read this question. Half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36. Find the dimension of the garden. मैंने क्वेश्चन को जानबूझ के दो अलग अलग कलर्स में लिखा है ताकि तुम क्वेश्चन के दो पार्ट को समझ पाओ. जो ब्लैक पार्ट में लिखा है वो एक क्वेश्चन की कंडीशन बनेगी और जो रेड पार्ट में लिखी है वो क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन बनेगी. सबसे पहले तो ये बताओ कि दो कौन सी चीजों में कंपैरिजन है. डायमेंशंस. डायमेंशंस यानी क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ. अब इस क्वेश्चन में ब्रेथ के बजाय उन्होंने विड्थ वर्ड यूज किया तो हम लोग वो यूज करेंगे. लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी एक्स एंड विड्थ ऑफ द गार्डन बी वाई. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, what is the first condition in this question? Length is, length means what, x, is means is equals to 4 more than the width. 4 more than the width यानी 4 plus y. So x is equals to 4 plus y. जो रेड लाइन लिख के थी वो रेड लाइन को हमने कन्वर्ट कर दिया कंडीशन बनाने के लिए. नाउ सेकंड कंडीशन बनाने के लिए जो ब्लैक वाली लाइन लिख के क्वेश्चन के अंदर वो लाइन पढ़ो. हाफ द पेरीमीटर. हाफ मीन्स 1/2. पेरीमीटर मीन्स व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्मूला, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इज 36. मीन्स उसका आंसर कितना है, 36. सो राइटिंग हियर द सेकंड कंडीशन, हाफ इंटू पेरीमीटर. पेरीमीटर मीन्स 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इज मीन्स इज इक्वल्स टू, देन आंसर इज 36. सो दिस इज अवर सेकंड कंडीशन. नाउ इन दिस सेकंड कंडीशन सी 2 गेट कैंसिल. 2 कट करके लिख दोगे तो ज्यादा इजी फॉर्म में आ जाएगा. सो हमने 2 कट कर लिया. सो इक्वेशन बिकम्स x plus y is equals to 36. This is our equation number 2. See in this equation number 2, suppose अगर इक्वेशन नंबर 2 को हमको कौन सी मेथड से सॉल्व करोगे तो इक्वेशन जल्दी सॉल्व होंगे. अगर तुम देखते हो तो तुमको समझ में आएगा. सपोज इस क्वेश्चन वी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाएगा. x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में जाके पुट कर दो. देन वी गेट x की प्लेस पर 4 plus y, देन y इज इक्वल टू 36. मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाया. अब आगे के क्वेश्चन तुम लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो. मैंने जस्ट हिंट दे दिए वहां पे. पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2. 1 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो एंड देन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड सेंड मी इट्स आंसर. नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4th. See the question number 4th. The difference between two numbers is 26. One number is thrice the other number. Then find those numbers. यहाँ पे दो नंबर्स के बारे में क्वेश्चन है. तो पहली बात तो हमको दो नंबर्स पता रहने चाहिए. कौन से दो नंबर्स हैं? लेट द बिगर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y. डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस? डिफरेंस का मतलब होता है दोनों की सब्सट्रैक्शन. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. दोनों की सब्सट्रैक्शन कितनी है? 26. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर की कैसे 3 टाइम्स.
एक नंबर यानी कौन है x, x इज 3 times द अदर एंड x इज इक्वल्स टू 3y बनेगी सेकंड कंडीशन। कौन सी वैल्यू कहाँ जाके पुटअप करोगे तो इक्वेशन जल्दी सॉल्व होगा? आई थिंक इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुटअप करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दैट इज अवर सब्स्टिट्यूशन मेथड। So I am writing here put value of equation number 2 in equation number 1 and solve this question by using the substitution method. This is one is also homework for you. ये क्वेश्चन भी तुम लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. The cost of 2 kg apple and 1 kg grapes is rupees 160 and after 1 month cost of 5 kg apple and 2 kg grapes is rupees 300. Cost of 1 kg apple and grapes we have to find. Sixth question, coach of cricket team 7 bats 6 balls 3800 rupees and later 3 bats and 5 balls 175 rupees. Cost of each bat and ball we have to find. And the seventh question, library fixed charges for 3 days and additional charge for the thereafter. Meena paid rupees 27 for book kept in 7 days. 7 days के लिए अगर उसने बुक रखा तो उसको 27 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। पहली बात तो स्टार्टिंग के 5th और 6th क्वेश्चन तुमको बहुत इजीली आ जाएंगे। 7th क्वेश्चन के लिए हिंट ये है कि तुम लोग क्या कर लोगे, जो फाइंड है ना वो फाइंड को अच्छे से देखो। फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज लिखा है, लेट द फिक्स चार्ज बी x। जो फिक्स चार्ज लिखा है उसको क्या ले लोगे x एंड एडिशनल चार्ज के लिए क्या ले लोगे y। फिक्स चार्ज के लिए x, एडिशनल चार्ज के लिए y। अगर 3 दिन बुक रखते हो तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, मीन्स फिक्स चार्ज के लिए x प्लस 7 दिन में से 3 दिन के लिए चार्ज नहीं लग रहा है। कितने दिन के लिए चार्ज लग रहा है? 4 दिन के लिए। तो 4 दिन का एडिशनल चार्ज कितना बनेगा? 4y। सो x प्लस 4y। समझ में आ रहा है कि कंडीशन कैसे बना है? फिक्स चार्ज कितना है? x। 4 दिन एक्स्ट्रा उसने लिया यानी कि 4y। सो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी? सिया नाम की जो गर्ल है इसने 21 रुपीज पे किया, लेकिन बुक कितने दिन के लिए रखी थी? 5 डेज। 5 डेज में से कितने डेज उसको फ्री था? 3 डेज, यानी x वो स्टार्टिंग के 3 डेज है ना हमारे x रुपीज है जो कि फिक्स है, उसके लिए हमको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। सो x प्लस 5 दिन में से 3 दिन चले गए, कितने दिन बचे? 2 डेज। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। दिस इज अवर सेकंड कंडीशन। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस 5, 6 एंड 7th ऑल दिस 3 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क। ओके, गुड बाय।